Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Louder please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती शिवाइन ग्रेस चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा ब्रज बिहारी की श्री श्री गौनिताय की ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna. So we have the great fortune, good fortune of having His Grace Sundar Shyam Prabhu amidst us. Sundar Shyam Prabhu is a disciple of His Holiness Radhanath Swami Maharaj. He joined ISKCON Pune in 1996. In the year when Radheshyam Prabhu had just begun his preaching in Bharati Vidyapit and my college also, COET, PVG college. And he is one of the early joiners of our temple who came through youth preaching and later on took up youth preaching as a very serious and solid service to the Srila Prabhupada's movement. So I know him since 1997, I guess, because that's the first time I might have seen him. And since then I have always seen him in his full vigor
whether it is in teaching, whether it is in sadhana, whether it is in tending to devotees in the ashram, or whether it is in the field of whatever service given to him, for example, preaching. So he was earlier a youth preacher. I have not seen the full track record of his services very closely, but what I know is that he was with Bharati Vidyapit, then eventually he was with VIT, VIT, IIT Kharagpur, IIT Kharagpur, NIT Warangal, NIT Warangal, and VIT Vellore. VIT Vellore. These 5 only. These are the 5 places he has been going for preaching. And in ashram where I studied with him together, there are countless number of brahmachari classes and mangala aartis and festivals and everything else that we celebrated together. I feel very fortunate to have him amidst us. Currently, Prabhuji is a traveling preacher. He's based in NVCC, but he gets invited in many places across India and other. So we have recently coming from Aurangabad just now. So there was a center, Ram Lakshman Prabhu. Chivdev Prabhu from Brahmachari side. So in this way, I requested him that please come and give some association to the boys here in the Gurukul and help them become Pakka Brahmacharis in their student life that they are leading right now. So he kindly agreed. So I consider it a very important and very hearty event in my personal life. And at such a short notice, he agreed to come and give time for all of us. After this, you'll be going back to NVCC, and whenever you go to NVCC and you get some time in the temple, please do associate with him. If I am present. And take his association more. Let's welcome him to our Gurukula by once chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you. Thank you. I am very grateful to His Grace Balgopin Prabhu for inviting me to your Gurukul. Very happy to see so many young devotees so enthusiastically participating in Krishna consciousness, in reciting Vedic verses, etc. So thank you for being what you are and what you are doing. We'll have prayers first. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Tadamaiham Dadati Swatadantikam Vandeham Shri Guraho Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunathānvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padha Sahagana Lalitam Shri Vishakhanvitamscha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So welcome to our evening discussion from the book Sri Chaitanya Charitamrita by the author Sri Krishnadas Kaviraj Goswami. We are going to discuss from Adi Leela chapter 8, which is entitled The Author Receives the Orders of Krishna and Guru. He will come to that subject matter a little later, but some other things also are there. So the way Sri Chaitanya Charitamrita is generally designed by the author is, first verse is in Sanskrit and it gives the essence of the whole chapter. Then second shloka is Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Sometimes third verse is also, this verse, second verse means all glories to Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya and all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu. Third verse sometimes something similar,
all glories to Gadadhar, but generally not. Third shloka onwards, the chapter begins, the discussion begins in Bangla verses, Bengali verses. Sometimes the verses in Sanskrit will be quoted from different Puranas, Bhagavad Gita, etc. In order to substantiate what is the point is. So first verse will recite, you can repeat after me. Vande Chaitanya Devam Tam Bhagavantam Yadichaya Prasabham Nartate Prasabham Nartate Chitram Lekharange Jado Payayam. The meaning is, English is okay ना bro? और हिंदी you want? कितने जनों को हिंदी में चाहिए? 3, 4, 5, 6, अच्छा एक एक करके बहुत ही आगे. ठीक है चलो हिंदी में करेंगे फिर, थोड़ा धीरे होगा, नो प्रॉब्लम. तो मैं चैतन्य महाप्रभु को वंदे चैतन्य देवंतम, उन चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार वंदना करता हूँ. भगवंतम यदिच्छया, जो उनकी इच्छा से क्या होता है, प्रसभम नर्त्यते चित्रम, कि मैं एक नाचने वाला कुत्ता बन गया हूं. और फिर आगे लेख रंगे जड़ो अपि अयम, सडनली टेकन टू द राइटिंग ऑफ श्री चैतन्य चरितामृत ऑल्दो आई एम अ फूल. हालांकि मैं एक मूर्ख हूं, लेकिन फिर भी मैं श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को लिखने के कार्य को स्वीकार किया हूं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से. तो इसमें इनकी नम्रता हम देख सकते हैं. नम्रता ये भक्ति देवी की कैरियर है. जैसे आप सब जानते हैं सबके वाहन होते हैं, अर्थात हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की भी एक तो 2 व्हीलर होते हैं, नहीं तो फिर 4 व्हीलर वाहन होते हैं. गरीब लोग हैं तो साइकिल उनका एक वाहन रहेगा. तो वैसे शिव जी का कौन सा वाहन है? नंदी, यानी बैल है उनका वाहन, जिसका नाम है नंदी. और गणेश जी का मूषक यानी चूहा. फिर कार्तिकेय का मोर. फिर दुर्गा देवी का शेर. फिर शनिदेव का कौवा. ये सबको पता नहीं है. गंगा देवी का मगरमच्छ. अच्छी बात है. और ब्रह्मा जी का हंस. यस. तो ऐसे हर किसी के वाहन होते हैं. तो भक्ति का कौन सा वाहन है? भक्ति देवी का नम्रता. तो नम्रता के अगर हम भक्ति में आगे वाहन में बैठते हैं तो ऐसे बैठने के लिए नहीं होता है. ऐसे नहीं कि जैसे अभी मुझे यहाँ बैठना था प्रवचन के लिए, तो मैं एक वाहन लेके आऊंगा, कार या 2 व्हीलर, और उसके सीट के ऊपर बैठूंगा. नहीं, वाहन में जब बैठते हैं तो वाहन हमें आगे लेके जाता है. कहीं तो हमें जाना होता है, पास में हो दूर में हो, कहीं तो जाना है, तो इसलिए वाहन में बैठते हैं तो आगे जाते हैं. तो वैसे ही भक्ति में आगे बढ़ना है तो बहुत महत्वपूर्ण है वो वाहन पे बैठे. वो कौन सा वाहन है? नम्रता. तो नम्रता के वाहन पे जो बैठा है वही आगे भक्ति में प्रगति कर पाएगा. जिसमें वो नम्रता नहीं, वो भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकता. तो नम्रता बहुत महत्वपूर्ण है. आप सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पंडित के रूप में थे नवदीप धाम में, तो उन्होंने एक बहुत बड़े विद्वान दिग्विजय का पराभव किया था. उसका नाम क्या था? काश्मीरी. तो आने के पहले ऐसे ही गुरुकुल के जो उनके महाप्रभु एक शिक्षक थे, उनकी पाठशाला थी, उसमें रोज कम से कम 10-20 बच्चे आके ज्वाइन होते थे और सैकड़ों लड़के थे जिनको वो पढ़ाते थे. तो उस दिन शाम की बात है, वो दिग्विजय पंडित वहां आने के पहले ऐसा हुआ था कि वो सब गंगा किनारे बैठे थे. चांदनी रात थी और मून चंद्र भी प्रकाशित हुआ था, और गौरचंद्र तो बैठे ही हैं गंगा किनारे. अपने सभी विद्यार्थियों से वो घिरे हुए हैं, छोटे छोटे आपके जैसे बालक थे वो. तो उन्होंने कहा, गुरुजी पता है क्या? बोले क्या? बोले एक बड़ा दिग्विजय पंडित आया है जिसने सबको परास्त कर दिया है. राजाओं ने तक, राजाओं के मंत्रियों को, उनके जो राज पंडित इत्यादियों को परास्त करने के बाद राजाओं ने ऐसे एक शर्त रखी थी कि आधा राज्य आपको दे देंगे अगर आप जीत गए तो. तो ऐसे बहुत सारे राजाओं के राज पंडितों को हराने के बाद उनका आधा राज्य इनको मिल गया है. और वो राजाओं ने उनको घोड़े दिए हैं, हाथी दिए हैं, ऊंट दिए, ये सब लेके चलता है वो. और ये राजा को भी शिष्य बनाए, राजाओं के मंत्रियों को भी, और बहुत सारों को, वो सबके साथ चलता है. ऐसा लगता है मानो राजा ही है. तो ये सब वर्णन से प्रतीत हो रहा था कि जरूर उसमें गर्व है, अहंकार बहुत है. अतः वो भी बताया गया था कि ये आया है नवद्वीप में एक ही उद्देश्य से, यहाँ के सभी पंडितों को परास्त करने के लिए. तो बहुत अहंकार था उसमें, ये तो प्रतीत हो ही रहा था जैसे वर्णन हो रहा था. तो महाप्रभु उस समय एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं कि ऐसा इतना ये गर्विष्ठ है, गर्व से भरा हुआ है, तो देखो कैसे कृष्ण बहुत जल्दी इसके गर्व को चूर चूर कर देंगे, इसको परास्त कर देंगे. और वो कृष्ण कौन है?
चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही है। उस समय एक श्लोक बोलते हैं, आप मेरे पीछे दोहराइए। फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन नम्रता से तहारा स्वभाव अनुक्षण। बहुत आसान है बांग्ला, मराठी जैसे आप में से कितने जनों को आती है मराठी? तो और हिंदी वैसे ही एक तरीके से। तो वो कहते हैं कि फलवंत वृक्ष, जो वृक्ष पेड़ फल से भरा हुआ है, आर और गुणवंत जन, ऐसे जन लोग जो गुणों से भरे हुए, अच्छे गुणों से भरे हुए, नम्रता से तहार, नम्रता ये उनका स्वभाव अनुक्षण, हर क्षण का स्वभाव होता है, क्षण के बाद क्षण, क्षण के बाद क्षण, उसको अनुक्षण कहते हैं। तो हर क्षण उनका नम्रता ये स्वभाव होता है। तो नम्रता होनी चाहिए हमें। जितना विद्या क्या कहते हैं, विद्या विनय ना संपन्ने, ओके ठीक है, विद्या विनय संपन्न। ओके, आप वो 5 अध्याय का श्लोक बता रहे, विद्या ददाति विनयम, ये एक संस्कृत में कहावत है, या मराठी में कहते हैं विद्या विनय न शोभते। तो विद्या, और आपने जो कहा विद्या विनय संपन्न, अभी भगवान बोल सकते हैं कि जो विद्या प्राप्त व्यक्ति है वो ब्राह्मण, गवी यानी गाय गैया, हाथी, चांडाल इत्यादियों को एक दृष्टि से देखता है। तो विनय संपन्न शब्द क्यों डाला है उन्होंने? क्योंकि विद्या जिसमें होती है उसमें संपन्न यानी क्या, उससे परिपूर्ण। जिसमें विद्या है वो किससे परिपूर्ण होगा? नम्रता से। विनय यानी नम्रता, विद्या विनय संपन्ने। तो भगवान न तो बता रहे हैं कि क्या उसमें है, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रहे हैं, उसके कुछ लक्षण बता रहे हैं जिससे कि हमें समझे। तो जितना ज्यादा विद्वान होता है व्यक्ति, विद्या होती है, उतना वो नम्र होता है। आज के तारीख में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो बड़े घमंडी बन जाते हैं, बड़े अहंकारी बनते हैं। उनका नाम लिखते हैं, जो भी नाम है, नीचे बड़ा लंबा डिग्री का वो ये रहता है, वो क्या होगा, BA MA MTech जो भी कुछ है ऐसा, LLB। और वो तो लिखने की बात हुई, लेकिन बोलते समय भी बोलते हैं कि मैंने इतना पढ़ाई किया, उतना पढ़ाई किया, बड़े अहंकार से बोलते हैं। तो ये उनके विद्या का नहीं, अविद्या का प्रतीक है। कितना अहंकार है उनमें। जितना विद्या प्राप्त है व्यक्ति उतना वो नम्र रहेगा। जैसे ये इसमें 2 उदाहरण बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। फलों से भरा हुआ जो वृक्ष है वो नीचे झुकेगा। अभी जिन पेड़ों में ये फल नहीं है, हम देख सकते हैं वो ऐसे कैसे खड़े, लेकिन जिनमें फल होगा वो नीचे झुक जाएगा, स्वाभाविक है वो। तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो गुणों से भरे हुए लोग हैं वो भी नम्र रहते हैं। तो यहाँ हम श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो लेखक है, इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, 11,000 से अधिक श्लोक है इसमें, और पूरे बंगाल में भी देखा जाए भक्तों के बीच में तो ये जैसे साहित्य शिरोमणि ही है ये ग्रंथ। लेकिन बंगाली भी, जो बंगाली लोग हैं वो भी, जो साहित्यकार रहते हैं वगैरह, वो लोग भी इस बुक की बहुत प्रशंसा करते हैं कि इतना अप्रतिम ग्रंथ है ये श्री चैतन्य चरितामृत। जो भक्त भी नहीं है, अभक्त है, स्कॉलरली है, विद्वान है, वो लोग भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इतना अप्रतिम ग्रंथ लिखा है उन्होंने। लेकिन उनकी नम्रता देखिए, कैसे बोल रहे हैं अपने बारे में, समझ रहे ना? तो अपने बारे में हमेशा नीचा ऐसा बताना चाहिए। अतः भक्तों के बीच में, बाहर के जनता को ये सब नम्रता समझ में नहीं आती, तो वहाँ जो भी जरूरत है वो, लेकिन ऐसा अहंकार तो कहीं भी दिखना नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, तो दिखने के सवाल ही नहीं। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि हालांकि मैं कुत्ता हूँ जो नाचने वाला है, और मैं ये ग्रंथ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि मैं मूर्ख हूँ। कैसे मूर्ख हो सकता है? इतना अप्रतिम ग्रंथ लिखने वाला मूर्ख तो हो ही नहीं सकता। बड़ा विद्वान है ये व्यक्ति, कोई भी पढ़ेगा तो बोलेगा तो बड़ा विद्वान है। लेकिन जो बोल रहे हैं उसके अनुसार तो दिख रहा है कि उनकी बहुत नम्रता है। तो कभी भी अपने आप को ऐसा बड़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहिए, हमेशा अपने आप को नीचा ही बताना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आपको बाद में हम प्रश्नों के लिए समय देंगे, तो आपके प्रश्न है तो आप पूछिए अंत में। फिर आगे तीसरे श्लोक में कहते हैं, जय जय अद्वैत आचार्य कृपामय, जय जय गदाधर पंडित महाशय। अद्वैत आचार्य जो कृपा से भरे हुए, इनकी जय हो, और गदाधर पंडित महाशय की भी जय हो। जय जय श्रीवासादि यत भक्तगण, प्रणत हैया वंदो सबार चरण। और श्रीवास इत्यादि जो महाप्रभु के अन्य बहुत सारे भक्त हैं, उन सबके चरणों में वंदना करता हूँ झुककर। तो ऐसे इनकी नम्रता यहाँ फिर से प्रतीत हो रही। मुख कवित्व करे या सबार स्मरणी, पंगु गिरि लंगे अंध देखे तारा गणे। तो यहाँ और बता रहे, भक्तों की अगर कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर है, कृपा आशीर्वाद तो दूर की बात, उनका स्मरण करने मात्र से क्या हो सकता है। ये सब जो भक्तों की नाम की आवली उन्होंने बताई, नामावली यानी एक के बाद एक नाम, चैतन्य महाप्रभु, नित्याप्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर, श्रीवास इत्यादि, तो इनका स्मरण करने मात्र से क्या लाभ होगा या क्या शक्ति प्राप्त होगी। पंगु गिरि लंघे, यानी जो पंगु है, जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, लेम, जिसको चलने को नहीं आता, पाँव में थोड़ा सा समस्या है,
तो ऐसा व्यक्ति पर्वत को लांग जाएगा। हम बोलते हैं ना पंगुम लंगायते गिरिम मुकम करोति वाचालम, वही अर्थ है इधर। पंगु गिरी लंगे, अंध देखे तारागण, अंधा व्यक्ति भी तारागणों को देख सकता है। तो इतना शक्ति आएगा। तो हमें हमेशा भक्तों का स्मरण करना चाहिए। भगवान का तो स्मरण होगा, करना चाहिए जरूर, लेकिन उससे भी थोड़ा आसान है भक्तों का स्मरण करना। कोई भी भक्त आपको जो बहुत अच्छे लगते हैं, आधा प्रभुपाद तो हम सब के लिए तो रोल मॉडल है ही, लेकिन उनके अलावा भी अगर कोई भक्त है जो भक्ति में बहुत प्रगति किए हैं, उनके हर कार्य, उनका चलना, उनका बोलना, उनका कीर्तन करना, ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे महान भक्तों के स्मरण मात्र से हमें बहुत लाभ होगा, हमारी शक्ति बढ़ती ही जाएगी। जो सामान्यतः गर्विष्ठ व्यक्ति होता है, जिसमें गर्व होता है, वो अपने बारे में बहुत सोचता है ना, सेल्फ सेंटर्ड होता है वो अपने बारे में, लोग मुझे कैसे देखते हैं, वो उसके बारे में, अपने बारे में ज्यादा वो कॉन्शियस चेतना रखता है। लेकिन जितना चेतना शुद्ध है उतना हम भगवान का और भगवान के शुद्ध भक्तों का स्मरण कर पाते हैं। मलिन हईले मन ना ही कृष्ण स्मरण, जितना मन मलिन है, यही विचार से, मिथ्या अहंकार के विचार से कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, उतना हम भगवान को स्मरण नहीं कर पाते। जैसे आईना है, दर्पण, उस पे बहुत धूल जमी है, और मैं तिलक लगाने के लिए गया उस आईने के सामने, तो क्या होगा, वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसके ऊपर धूल लगी है, समझ रहे। वैसे पानी भी होता है किसी तालाब में वगैरह, अगर वो पानी गंदा है तो उसके नीचे के भाग को हम देख नहीं सकते कितना गहरा है वगैरह, लेकिन बहुत ही निर्मल शुद्ध पानी है तो हम उसके बॉटम, उसके निचला भाग है, उसको भी देख सकते हैं, समझ रहे। तो उसी तरह से हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। जितना मन शुद्ध है उतना हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। मलिन, और उसके उल्टा, मलिन हईले मन नहीं कृष्ण का स्मरण, मन जितना मलिन है कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। तो ये सबसे अच्छा तरीका क्या है मन को शुद्ध करने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूप जो हमारा जो दर्पण आईना है वो उसको साफ कर देता है हरि नाम। फिर हम अपने आप को देख सकते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और आगे जाके मैं कोई इस संसार का नहीं हूँ, मैं कृष्ण दास हूँ। जीव कृष्ण दास, यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। अगर ये विश्वास हो जाए हमें कि हम कृष्ण के दास हैं, तो हमें कोई भी दुख नहीं रहेगा हमारे जीवन में। जैसे प्रभुपाद को हम देख सकते हैं, 70 साल की आयु में अमेरिका जाना तो कोई सीधी सी बात नहीं है, अभी भी हम जाने को तैयार नहीं होगी, और वो भी मालवाहू जहाज में। तो बहुत मुश्किल रहेगा, समुद्र में प्रवास ही बहुत मुश्किल है, और वो एक मालवाहू जहाज में तो और भी बहुत ही बुरा है। और वो तो उम्र 70 साल की, पैसे नहीं जेब में, वो किसी को जानते नहीं वहाँ जहाँ जा रहे हैं, कितना दूर, 10,000 किलोमीटर के दूरी पे। तो लेकिन इतना उनमें दृढ़ विश्वास, क्योंकि कृष्ण का इतना नाम जप किया था, इसलिए हृदय बहुत शुद्ध था। तो हमें भी उसी तरह अपने हृदय को शुद्ध होने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो ऐसे भक्तों का, महान भक्तों का जो शुद्ध भक्त है, उनके स्मरण मात्र से जो मुख है, वो पहले बताएं, मुख को कवित्व करे। कविता करना, आप में से कितने जनों ने कविता लिखी है, हाथ ऊपर कीजिए, अपनी खुद की। इतने आसान नहीं होता। एक तो निबंध लिख सकते हैं ऐसे, तो आसान होता है क्योंकि उसमें सिर्फ सेंटेंसेस, वाक्य लिखने होते हैं, लेकिन कविता लिखनी है तो कम शब्दों में वो लिखना होता है, और उसमें बहुत सारे छंद, अलंकार, बहुत सारी चीजें होती है। तो कविता करना ये सामान्य लोगों का कार्य नहीं होता। वाक्य लिख सकते हैं, कविता के लिए थोड़ा ज्यादा विद्वत्ता वगैरह लगती है, एक विशेष कला है वो। तो ये मूका व्यक्ति जो बोल नहीं पाता, वो भी कविता कर सकता है अगर भक्तों का, शुद्ध भक्तों का स्मरण करें। और जो लंगड़ा है वो चल सकता है, पर्वत को पार कर सकता है, और जो अंधा है वो तारकाओं को भी देख सकता है। तो ऐसे बता रहे, ये सब न माने ये पंडित सकल, तासा बार विद्या पाठ भेक कोलाहल। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर बहुत सारे पंडित लोगों का कुछ विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनको अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा विश्वास होता है। आत्मविश्वास जो कहते हैं, असलियत में आत्मविश्वास यानी सबसे पहला विश्वास गुरु, कृष्ण, वैष्णव के ऊपर विश्वास होना चाहिए, तो फिर आत्मविश्वास बढ़ सकता है। लेकिन जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो अपने ही जो कुछ टैलेंट्स हैं उनके, कुछ उनके एक्सपर्टीज, निपुणता होती है, तो उसमें ही वो ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इसलिए यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ कि महान भक्तों के स्मरण से इतना सब कुछ शक्ति प्राप्त हो सकता है, ये बाहर वाले जो लोग हैं जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, गुरु की शक्ति, आचार्यों की शक्ति के बारे में पता नहीं, वो इन जो मेरे वाक्य हैं इनके ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, उस पर विश्वास नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि तांसाबार विद्या पाठ भेक कोलाहल, उन लोगों का जो विद्या पाठ है वो कैसे है, जैसे मेंढकों का आवाज करना, देखते हैं ना बरसात के दिनों में मेंढकों का आवाज, कितने जनों ने सुना है? मेंढक, फ्रॉक्स है ना, राव राव राव, बहुत आवाज करते वो लोग, है कि नहीं?
तो वो उसके समान है। अभी आप थोड़ी देर पहले जब मैं आया इधर तो आप विद्या पाठ कर रहे थे, आपका जो शायद ब्रह्मांड पुराण से, नरसिंह पुराण से, ब्रह्मांड पुराण ना, ब्रह्मांड पुराण से नरसिंह, हाँ ब्रह्मांड पुराण से, क्योंकि अंत में आपने बोला ना इति ब्रह्मांड पुराण कुछ तो बोले आप, तो मुझे उससे क्लू मिला कि वो ब्रह्मांड पुराण से। तो वहाँ आपने नरसिंह कवच का जो श्लोक पाठ किए वो बताया आपने, तो वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप में नम्रता है, अपने आचार्यों के दिए हुए जो श्लोक इत्यादि है उसके ऊपर आपका विश्वास है, तो ये बहुत विशेष है। लेकिन जो भौतिकवादी लोग होते हैं जो अपने विद्या पाठ करते रहते हैं, ऐसे ही वो बोलते रहेंगे, लेकिन वो मेंढकों की आवाज करने के समान है। वो मेंढकों की आवाज से क्या होता है, क्या कुछ विशेष चीज होती है? एक ही विशेष चीज होती है, जो सांप होता है अंधेरे में जिसको कुछ दिखता नहीं, तो उसको समझ में आता है कि मेंढक किस दिशा में, हाँ वो उधर पीछे से है, पीछे जाएगा वो बराबर सांप, और मेंढक को निकल जाएगा, मार डालेगा, उसको खा जाएगा। तो उसी तरह से ये विद्या पाठ करने वाले लोग जिनमें बहुत गर्व होता है, आचार्यों के कृपा के ऊपर उनको कुछ विश्वास नहीं होता, ऐसे लोग काल सर्प के द्वारा निकले जाते हैं। उनका समय जल्दी जल्दी बीत कर मर जाते हैं जल्दी, और काल सर्प के निकले जाते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी सूर्यास्त हो गया, आपका सूरज किधर था, सूर्य वेस्टर्न कौन सा, पश्चिम पश्चिम, हाँ तो आपका सूरज इधर ढल गया, अभी शायद अभी नहीं दिख रहा, तो सूर्यास्त हो गया। तो एक दिन हमारे जीवन से चला गया। सूर्योदय जब सुबह हुआ था 26 मार्च आज का, वो ढल गया। अभी कल सुबह 27 मार्च को फिर से सूरज इधर से आएगा। तो जैसे ही सूर्योदय होता है और बाद में सूर्यास्त होता है, तो एक दिन चला जाता है। तो ऐसे काल के सर्प के द्वारा हम सब मानो मेंढक के समान है, और हम सब निगले जाते हैं। जितना लोग बकबक करते रहते हैं, यानी भौतिक प्रजल्प करते रहते हैं भौतिक चीजों के बारे में, उतना जल्दी उनकी आयु क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। और जितना भगवान के बारे में बोलते हैं उतना हमारी आयु, क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक शाश्वत जीवन है वो आयु बढ़ जाएगी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के बारे में बातें करें, भक्ति के बारे में बातें करें, न तो भौतिकवादी लोग या भौतिकवादी चीजों के बारे में बात करें। यही सब न माने ये बा करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही तारे नाही तार गति। तो इनको, जिन लोगों को इस जो मैंने गुणगान किया है इसके ऊपर, या पंचतत्व की जो महत्ता है उनके ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण की भक्ति करने का एक ढोंग करते हैं, तो कहते हैं वो लोग कभी भी कृष्ण कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते और अपने अंतिम लक्ष्य, चरम लक्ष्य के प्रति अग्रसर नहीं हो सकते। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आचार्यों की कृपा, उनकी शक्ति के ऊपर हमें विश्वास होना, अन्यथा प्रगति नहीं कर सकते। भगवद्गीता में भी भगवान क्या कहते हैं, 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, गुरु को कैसे जाना है, पेश आना है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। फिर हाँ, तो कितने चीजों के बारे में भगवान बात कर रहे हैं इसमें। गुरु के पास जाना है तो कितने चीजें चाहिए, 6। हाँ बताइए कौन सी 6, किसने बोला 6? हाँ बताइए कौन से 6 चीजें आपने बताया ना, आपने गिनती की होगी ना, आपकी गिनती में 6 आ गए तो बता दीजिए जो 6 है। कौन बताएंगे, कितने जनों को पता है, हाथ ऊपर कीजिए। ये श्लोक का अर्थ कितने जनों को पता है? अच्छे। तो अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है, श्लोक तो याद करना ही चाहिए, लेकिन अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो फिर वो वैसा हो जाएगा। आपको पता है ना, एक बार वो जो चिड़िया माता पिता थे, उन्हें अपने छोटे बच्चे, छोटे छोटे चिड़िया थी, तो उनको बताया, अरे देखो बेटो, हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए दाने लाने के लिए जंगल में, तो दूर जाएंगे, तुम यहाँ असुरक्षित रहोगे, कोई भी आएगा पकड़ेगा वगैरह, तो विशेषकर शिकारी से बच के रखना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। क्या समझे, समझे कि नहीं समझे? वो माता पिता ने बच्चों को, चिड़िया समझे ना, स्पैरोज, तो उनको पूछा, तो वो दंग नहीं 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 समझे। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, आप भी सुनो ध्यान से। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। कितने जन समझे, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, कौन नहीं समझा, हाथ ऊपर कीजिए। सब समझ गए। हाँ, तो वही आप भी वैसे ही है जैसे वो चिड़िया के बच्चे थे छोटे छोटे, ठीक है, माता पिता, तो माता पिता ठीक है ना, ध्यान देना, तो उड़ के हाँ वो बाद में अभी कथा आ गई उस संदर्भ में, तो उसकी, तो फिर वो माता पिता चिड़िया दोनों उड़ के चले गए दाने लाने के लिए बच्चों के लिए। तो यहाँ क्या हुआ, ये बच्चे सब थोड़ा छोटे, थोड़ा बड़े थे थोड़े, तो वो नीचे आए और उधर वो खेलने लगे जमीन के ऊपर, और खेलते खेलते क्या बोले थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। याद करो हाँ आप सब, ये भी एक श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उस स्टोरी के साथ, कहानी के साथ बहुत महत्वपूर्ण बनता है।
फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद एक शिकारी आया उधर, उसने देखा कि ये जो चिड़िया के बच्चे, वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। तो वो बेचारा डर गया, अरे इनको तो हम फंसा ही नहीं सकते जाल बिछा कर, लेकिन फिर भी क्या करे, और तो कुछ है नहीं चाह रहा, तो फिर ठीक है कर देता। तो उसने अपना जाल बिछा दिया और वो सब खेल रहे थे उधर, खेलते 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 वो ऐसे करते ना, जंप मारते 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 वो जाल में आ गए। और क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। और वो किधर बैठे थे अभी, जाली में उसने दाने पे डाले थे और वो दाने खाने लगे। और क्या बोले वो, शिकारी आएगा, दाना डाल, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। हाँ, और वो सब फंस गए। और वो शिकारी ने कहा तो पागल है ये सब लोग, तो ऐसे बोल रहे हैं, उनको तो कुछ मतलब ही पता नहीं था। और उसने वो ले लिया सब, जाल तो था, ऐसे पकड़ के वो सब अभी अंदर फंसे हुए, उसने अपने कंधे पर डाला और जा रहा था। और ये सब चिड़िया छोटे छोटे क्या बोल रहे थे, शिकारी आएगा, आएगा यानी भविष्य में आएगा, कब आएगा वो तो कब का आ गया, फिर क्या करेगा आने के बाद, जाल बिछाएगा, वो तो कब बिछाएगा, वो तो बिछा चुका ना, हो गया वो, भूतकाल हो गया वो। फिर बाद में क्या करेगा, दाना डालेगा, दाना कब, भविष्य में डालेगा, वो तो भूतकाल में डाल भी दिया। और फिर आगे भूल से उसमें फंसना नहीं। और ये क्या हुआ है, सब फंसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको थोड़ा थोड़ा और अपनी बुद्धि को थोड़ा सतेज बनाना होगा, थोड़ा और एक्सर्शन करना होगा। तो अभी हाँ बताइए, कितनी चीजें, 3 चीजें, कौन सी है? हाँ, आप सीनियर स्टूडेंट लग रहे हैं तो आपको पता है, अब बहुत सालों से श्लोक गा रहे हैं। तो प्रणिपात का क्या मतलब है, कितने जनों को पता है, हाथों पर कीजिए। ओके बताइए। ओके, और कोई, सबमिसिव। हाँ, 5 जाना, प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है, जस्ट ट्राई टू अप्रोच ए सेल्फलेस विश्वास। तो 5 जाना प्रणिपात, यानी हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते एक तरीके से, क्योंकि वो गुरु के पास ही नहीं जा रहे हम। तो जाना और उनको सरेंडर करना, ये है। और फिर दूसरी चीज प्रणिपात, परिप्रश्न का क्या मतलब है? हाँ, गुड क्वेश्चंस, ओके, रिलेवेंट इंक्वायरी, करेक्ट। और कोई? हाँ, सबमिसिव इंक्वायरी, तो ये दूसरा। और तीसरा सेवा, सेवा यानी सर्विस, सर्विस यानी सेवा यानी सर्विस, तो इंग्लिश शब्द हो गया, ठीक है। यानी क्या, कुछ तो फिजिकली, शारीरिक रूप से कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो आदेश दिया है, उन्होंने कहा जैसे पानी लाइए, मुझे प्यास लगी, तो क्या करना होगा, हमें जाना होगा, वो पानी लाना होगा, उनको पानी देना होगा। पीने का काम वो करेंगे, लेकिन हमें पानी लाकर उनको देना होगा। तो ऐसी सेवा करनी होगी, समझ रहे ना। तो ये तीनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो ये सब कृष्ण ये नहीं मानते, जो आचार्यों की शक्ति के बारे में, पंचतत्व की शक्ति के बारे में, तो उनको कृष्ण भक्ति करने के बाद भी कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती, और अंतिम उनकी चरम गति भी उनको प्राप्त नहीं होती। पूर्वैच्छे जरासंध आदि राजगण वेद धर्म करी करे विष्णु पूजन। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जरासंध जैसे बड़े बड़े बहुत सारे राजा हो गए, वो वेद धर्म वगैरह इत्यादि करते थे, विष्णु की पूजा भी करते थे, कृष्ण नहीं माने, लेकिन कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं था, ताते दैत्य करी माने। और उल्टा वो सब तो वो राक्षसी थे, जैसे जरासंध एक राक्षस था। चैतन्य न मानी ले तैचे दैत्य तारे जानी। उसी तरह से अगर चैतन्य महाप्रभु को अगर कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं है व्यक्ति का, तो मैं तो उसको दानव या राक्षसी कहता हूँ। ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, मोरे ना मानी ले सब लोक हबे नाश, इथि लागी कृपार्थ प्रभु करिला संन्यास। ये कारण भी था महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया, कि उन्होंने देखा कि वो मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं, जो उनकी असलियत में पहचान थी, लेकिन कम से कम एक आदरणीय व्यक्ति समाज में, इतने पंडित तो हैं निमाई पंडित के रूप में, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, तो ब्राह्मण को भी सत्कार सम्मान देना होता है। तो किसी एक कारण से अगर कुछ थोड़ा सा स्वीकार करे चैतन्य महाप्रभु की महानता को, उससे उनको लाभ होता था। लेकिन उल्टा वो तो महाप्रभु को गाली गलौज करने लग गए। आपने कथा सुनी होगी कि एक बार महाप्रभु अपने घर में गोपी गोपी बोल रहे थे, तो एक बालक आया और कहे कि क्या ये गोपी गोपी बोल रहे हो, अरे कृष्ण का नाम लो, शास्त्र में कृष्ण का नाम लेने के लिए बताया गया है। तो बोले वो कृष्ण का नाम, वो तो बदमाश है करके भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले, क्योंकि वो गोपियों के भाव में थे। तो गोपियों ने जितना टाइम दिया था, इतने बजे आना है आपको मिलने के लिए, तो आए नहीं वो, तो थोड़े से उस नाराजगी में महाप्रभु बोल रहे थे गोपियों के भाव में। तो फिर उसके कारण
और उन्होंने तुरंत लाठी उठाई और वो बच्चे को मारने के लिए भागे। वो बच्चा दौड़ा 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 बहुत तेज गति से दौड़ के अपने बाकी मित्रों के साथ में गया और एकदम उसकी सांस चढ़ गई थी। इतना दौड़ा था। बोले क्या हुआ, इतना क्यों दौड़ के आए? बोले वो निमाई पागल हो गए। मैंने बोला उसको गोपी का नाम छोड़, कृष्ण का नाम ले, और वो मुझे ही मारने के लिए मेरे पीछे भागा। तो कैसे तो जान बचा कर आया। बोले अच्छा। वो सब बाकी लड़के बोले अपने आप को क्या समझता है? अरे ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो क्या हमारा क्या ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं हुआ क्या? वो जगन्नाथ मिश्र का पुत्र हुआ तो हम भी क्या, हमारे माता पिता भी बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे करके वो थोड़े गर्वित शब्द बोलने लगे। बोले अगली बार इसने ऐसा किया ना ये निमाई पंडित ने, तो हम तो उसको लाठी से मारेंगे। तो देखिए महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, उनकी महानता के कारण उनको आदर देने की बजाय ये लोग उल्टा उनको गाली गलौज कर रहे थे और मारने के बारे में भी सोच रहे थे अगली बार। तो फिर महाप्रभु ने कहा, सोचा, महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ तो करना होगा जिसके द्वारा लोग मेरा सम्मान करें, न तो इस तरह से गाली गलौज करें। तो क्या करें जिससे कि लोग सम्मान करेंगे? मुझे संन्यास लेना होगा, क्योंकि सन्यासी के सामने सभी झुकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, ऐसे श्लोक है कि अगर सन्यासी को जो पहली बार हम दिन में देखते हैं, अगर हम पूरा अष्टांग प्रणाम न करें तो फिर हमें उस दिन उपवास रखना होता है। उस दिन कुछ खाने का नहीं। तो हम क्यों उपवास रखना चाहेंगे, है कि नहीं? एकादशी है तो अलग बात है, जन्माष्टमी है तो अलग बात, उस दिन उपवास रखते हैं। सामान्य दिन है उधर उपवास कौन रखना चाहेगा? तो इसलिए कम से कम प्रसाद मिले खाने को, इसी कारण से तो लोग सन्यासी को जरूर नमस्कार करेंगे। समझ रहे ना? सन्यासी को देखा पहली बार और नमस्कार नहीं किया तो क्या करना होगा? उपवास रखना होगा। तो नहीं उपवास रखना, इसलिए सब जन नमस्कार करेंगे ही करेंगे। अतः जिनको ज्यादा पता है कि कैसे सन्यासी कितना महान कार्य करते हैं तो जरूर झुकेंगे, लेकिन अन्य लोगों को भी झुकना पड़ेगा ही। तो ऐसे वो यहाँ बता रहे हैं कि महाप्रभु ने ये सोचा और फिर हम सब के ऊपर कृपा करने हेतु उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। सन्यासी बुद्धि मोरे करीबे नमस्कार तथापि खंडिबे दुख पाइबे निस्तार। अगर सन्यास में सन्यासी भी ये सोचकर अगर मुझे नमस्कार करेंगे लोग तो उनका सब दुख नष्ट हो जाएगा और वो निस्तार हो जाएगा, जन्म मुक्ति के चक्कर के बाहर चले जाएंगे, ऐसे वो बता रहे। तो किसी का कोई प्रश्न है जो हमने चर्चा की? कितने जनों को चर्चा समझ में आई? हाथ ऊपर कीजिए। तो फिर कुछ प्रश्न है? आपका? यस। उसमें आपका क्या समस्या है? वो एक तरीके से आपको ही नहीं, आपके हृदय में जो परमात्मा स्थित है उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? उनकी इच्छा ना, हमने थोड़ा बोले मेरे सामने झुको आप, मैंने झुका ना, आप क्यों नहीं झुक रहे? ऐसे थोड़े हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। वो झुके ना झुके, उनकी इच्छा से वो झुक रहे तो झुकने दीजिए। हम कौन होते हैं उनके जीवन? उनकी इच्छा से उनके जीवन में कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं जिसमें हम दखल अंदाजी नहीं करते हैं। उनकी इच्छा है झुकने की, झुकने दीजिए। उनकी इच्छा है नहीं झुकने की, नहीं झुकने दीजिए। हमें कुछ उससे मतलब नहीं, हमारा कर्तव्य है हमें झुकना, तो हम झुकेंगे जरूर। और पूजक थे ना, उनकी आराध्य कौन थी? सरस्वती देवी। तो जो देवताओं की आराधना करते हैं वो ही एक पहले अल्प बुद्धि का प्रतीक माना गया है। कौन सा श्लोक है वो? एक श्लोक है भगवद्गीता में, शुरुआत क्या है उसकी? हाँ, ये शुरुआत क्या है? एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं कि जो देवताओं के पास जाते हैं भौतिक इच्छा लेकर तो वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं। तो पहले तो वो देवता के पास गए हैं, सरस्वती के पास, तो यही उनके पहले अल्प बुद्धि का या उनके अविद्या का प्रतीक माना गया है। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि देवता लोग ऐसे बुद्धू नहीं होते। विशिष्ट सरस्वती देवी तो भगवान की पत्नी भी मानी गई है, विद्या सरस्वती, शुद्धा सरस्वती, जो गोलोक वृंदावन में रहती है, भगवान की एक संगिनी है। तो वो सरस्वती देवी, जिसका ही एक रूप देवताओं के बीच में सरस्वती के रूप में होता है, जो ब्रह्मा जी की पत्नी होती है, जो विद्या की देवी मानी गई है। तो वो तो बुद्धू नहीं थी सरस्वती देवी, तो उन्होंने बाद में इसको ठिकाने पे लाया, ये इनको दिग्विजय पंडित को, कि अरे मूर्ख, तू सोच रहा था, तू मुझे पुकार रहा था उस समय निमाई पंडित से जब वाद विवाद कर रहा था, वो तो मेरे स्वामी साक्षात कृष्ण है। तो मेरे पास जो भी तथाकथित जो ज्ञान है वो उनके सागर रूपी ज्ञान सागर का एक बिंदु के समान है।
अब तुम मेरी पूजा करके कुछ मुझसे विद्या प्राप्त किए हैं, मेरे स्वामी के सामने मैं सामने भी नहीं आ सकती, तो इसलिए मैं आई नहीं, ये मेरी तुम्हारे ऊपर कृपा थी, ऐसा मत सोचना कुछ मैंने तुम्हें धोखा दिया इत्यादि। और अभी जाओ तुम उनकी शरण ग्रहण करो। तो सरस्वती देवी ने तो उनको बराबर ठीक से बताया सब इस समय परास्त होने के बाद, और फिर वो जाके शरणागत भी हुए। तो अगर जो भगवान के पास आता है तो वो नम्र बन सकता है, अन्यथा देवताओं के पास जाना पहले ही अविद्या का लक्षण माना गया है। लेकिन ठीक है, अगर देवता के पास जाके थोड़ा शुद्धता से कुछ मांगे तो देवता की कृपा से भी नम्रता आ सकती है या अविद्या जा सकती है। और कैसे जाएंगे वो देवता आपको भगवान के पास लेके जाएंगे। यस, ठीक, यस। वैष्णव के साथ तो हमेशा नम्र रहना ही चाहिए। और जो बाहर वाले लोग हैं उनके साथ अंदर से हम नम्र रह सकते हैं, लेकिन बाहर से नहीं तो आपकी नम्रता का वो गलत फायदा उठाकर बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका शोषण कर सकते हैं। तो इसलिए वहां नम्रता अंदर से रहेगी, लेकिन बाहर से जो उचित व्यवहार है वो करना पड़ेगा। जैसे समझिए, अगर कोई मुझे देखता है साधारण ब्रह्मचर्य और मेरे जेब में समझिए 100 रुपए की नोट है, बोलता है हमें तो पता ही है आप तो साधु हैं, आप तो कुछ प्रतिकार नहीं करेंगे वगैरह, ऐसे करके मेरे जेब से उसने 100 रुपए निकाल के अपनी जेब में डाल दिए। तो बोले हाँ हम तो प्रतिकार नहीं करेंगे, लेकिन हम दान के रूप में जरूर सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो ये जो दान था वो तो मैं ले रहा हूँ मेरा वाला, और आपसे भी थोड़ा भीख मांगता हूँ, आप भी हमारे भगवान की सेवा के लिए कुछ दान दीजिए। तो तब तक मैंने 100 रुपए पहले फिर से निकाल के मेरे जेब में डाल दिए, समझ रहे ना। लेकिन मैंने उसको गलत नहीं कहा, कुछ गाली गलौज नहीं किया। जो 100 रुपए उसने मेरे जेब से निकाल के लिए थे, मैंने फिर से अपने जेब में डाले और बाद में कहा कि थोड़ा भिक्षा के रूप में थोड़ा और भी दीजिए। तो ऐसे शोषण नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते ओ अभी तो नम्र रहना, यानी अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने 100 रुपए ले लिया, अभी क्या करूं, नम्र रहता हूँ। ये नम्रता नहीं है, ये आपका शोषण हो गया। तो शोषण भी नहीं होने देना है अपना। तो अंदर से नम्र रहना है जरूर, लेकिन बाहर से शोषण भी नहीं होने देना है। तो वो थोड़ा मैच्योरिटी आ जाए, परिपक्वता, तो हमें समझ में आता है कि क्या एग्जैक्टली कब शोषण हो रहा है। शोषण नहीं होने देना है। आप बड़े हैं तो आप समझते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। कभी कभी छोटे बच्चों को नहीं समझ में आता, कोई उनको शोषण कर सकता है। और यस, कैसे आया? अभी तो आने का प्रयास कर रहा हूँ आया नहीं, आपको देखकर अभी शायद मैं अधिक आ रहा हूँ अंदर मुझे भी इच्छा हो रही कि मैंने आपकी उम्र में तो कुछ किया नहीं भक्ति, कम से कम अभी बूढ़े होने के बाद भक्ति के पहले तो करूँ। लेकिन भक्तों से, वैसे मेरा जन्म एक वारकरी संप्रदाय में हुआ था, तो बचपन से विट्ठल भक्ति थी, तुकाराम महाराज के अभंग वगैरह हम गाते थे। और मैंने वैसे भी पढ़े थे ग्रंथ, इतने बहुत सारे पुराण पढ़े थे बचपन में, जो कहानी के रूप में थे वगैरह। और भक्तों की, इस्कॉन के भक्तों को भी मैं जब 6.5 साल का था 1984 में, तो उन्होंने एक ऑल इंडिया पद यात्रा निकाली थी 1.5 साल की। तो उसमें मैंने एक दिन भाग लिया था यानी हमारे गांव में आए थे। तो उसी दिन मेरे पिताजी ने भगवगीता भी खरीदी थी, जो मुझे पता नहीं थी, उन्होंने खरीदी है। और मैं बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ता रहता था। और जब मैं 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं में था तो देखा मैंने भगवगीता, तो मुझे लगता था ये पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना मोटा कभी पढ़ा नहीं था पिता, तो मुझसे हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में था तब मैंने वो पूरी भगवगीता मराठी में जशी है तशी पढ़ डाला, प्रभुपाद का। समझा कुछ नहीं, मुझे यही समझा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ इतना थियोरेटिकली समझा, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। तो लेकिन मन में इच्छा थी कि इसको अच्छे से पालन करें। और फिर 1996 में 1996 में जब मैं श्रीमद राधेश्याम प्रभु और अन्य इस्कॉन के भक्तों से मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने पढ़े लिखे लोग पूरी तरह से समर्पित है भगवत भक्ति और विशेषकर प्रचार में। तो मुझे पहले से वो खोज थी एक तरीके से कि कहीं तो निस्वार्थी जीवन जीना है। मैं बचपन में बहुत स्वार्थी था, अपने नोटबुक्स में बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं करता था, उनको झूठ बोलता था मैं कि नहीं, वो जब मांगे कोई मुझे तुम्हारी मैथमेटिक्स की नोटबुक दो, मैंने वो मुझे पढ़नी है आज, मैंने अभी वो बेचारा क्या करेगा। तो ऐसा मैं हर बार बहाना बना के झूठी बोलता था, मैं तो पढ़ता नहीं था, वो मेरा अलग ही स्टाइल था पढ़ने का। लेकिन जो भी है, तो एक मेरे मित्र ने कहा तो ठीक है तुम्हारा होने के बाद मैं लूंगा। मैं बोला फिर इसका मतलब क्या? बोले मैं तुम्हारे साथ घर में आता हूँ, तुम पढ़ो शाम को, तुम्हारे होने के बाद मैं पढ़ूंगा। तो मैं माय गॉड, तो टेंशन चढ़ गया अभी। तो मैं बैठ गया पढ़ने के लिए, वो नोटबुक मैंने खोल के पढ़ना शुरू किया और वो बेचारा उधर ही बैठा था बाजू में, तो मैंने 1-1.5 घंटा वो बुक मैं पढ़ता ही नहीं था, लेकिन पढ़ा जिससे कि वो चला जाएगा। वो चला ही नहीं गया, वो बैठा रहा 1.5 घंटा। तो फिर बाद में मैंने सोचा जाने दो, आज के दिन तो मैं हार गया, तो मैंने नोटबुक बंद करके उसको दे दिया। तो इतना स्वार्थी था। लेकिन और बहुत सारे पहला नंबर वगैरह आता था स्कूल में और बहुत सारे अवार्ड्स मिलते थे, लेकिन मुझे खोखलापन उसका महसूस हुआ कि हॉलो है ये सब, तो असली सुख नहीं मिल रहा है। तो असली सुख तो निस्वार्थी जीवन में ही रहेगा, ये मुझे कंक्लूजन तो था पता, लेकिन निस्वार्थी जीवन कैसे जीना है वो मुझे पता नहीं था। तो वो भक्तों को देखकर और भक्तों की जीवन शैली देखकर, विशेषतः ब्रह्मचारियों की, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया
कि निस्वार्थी जीवन जिया जा सकता है इस कलयुग में, 21वीं सदी में हो गई। तो फिर मैं, इच्छा तो थी मेरी निस्वार्थी जीवन जीने की। तो बचपन में सोचता था कि भारत की आर्मी में, सैन्य दल में मैं जवान बन के शहीद हो जाऊं देश के लिए लड़ते लड़ते। लेकिन बाद में विचार करता हमारा कद भी छोटा है और तब तो हम बहुत ही दुबले पतले थे, मतलब कौन इंडियन आर्मी में लेंगे कि नहीं पता नहीं, और कुछ ज़्यादा मार्गदर्शन में नहीं था। तो लेकिन बाद में जब पता चला कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो क्यों हम ये दूसरे देशों के ऊपर मारा मारी करना, उनको मार डालना या खुद मारना, ये जरूरत नहीं। अच्छा है कि भगवान के जो उद्देश्य है उसके लिए अपना जीवन समर्पित करें। तो पूरा सोच समझ करके मैंने इसको हमें पदार्पण भी किया और ब्रह्मचर्य आश्रम में गया। ठीक, ओके, समय तो हो गया आपका। ओके, प्रश्न छोटा हो सकता है बट आंसर नीड नॉट बी। हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम में नम्र न होना, यही एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी है, सबमिसिव। अगर मुझे किसी ने पूछा कि ब्रह्मचारी जीवन को आप एक शब्द में क्या बोलोगे, तो मैंने कहा सबमिशन। तो बहुत सबमिशन है। अभी रिसेंटली ये प्रभु जी से मेरी बात बस पता नहीं कितना 5-6 दिन पहले हुई थी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कहाँ आना है, बोले मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे भेजा भी था, और बस उसके 1-2 दिन के बाद ही हमारे मंदिर का नियम निकला। राजेश प्रभु ने कहा कि कोई भी ब्रह्मचारी के मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए, होगा तो उसके लैपटॉप में हो सकता है, क्योंकि लैपटॉप, मैं तो लैपटॉप कैरी नहीं करता। तो मैंने बताया कि मैं लैपटॉप नहीं कैरी करता और मैं काफ़ी प्रवास करता हूँ भारत में, तो मैं लैपटॉप नहीं लेके जाता, तो मेरे लिए वो यूजलेस एक तरीके से व्हाट्सएप, तो मेरे मोबाइल में होना चाहिए। वो बोले नहीं, आपको निकालना है आपके मोबाइल से व्हाट्सएप। तो जब उन्होंने इतना ज़बरदस्त बुलाया, थोड़ा डांटा भी मुझे क्योंकि मैं तुरंत स्वीकार नहीं किया था कि वो व्हाट्सएप मेरे, बाकियों के मोबाइल से निकाल दो, क्योंकि उन तो पुणे में रहते हैं, व्हाट्सएप मोबाइल में देखें, लैपटॉप में देख लेंगे, लेकिन मैं तो इतना प्रवास करता हूँ। तो फिर जब मैं तुरंत स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने थोड़ा डांटा भी मुझे और कहा कि छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे लैपटॉप में व्हाट्सएप इंस्टॉल करो। मुझे मतलब मैं तो कभी करूँगा ही नहीं, तो मैंने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप निकाल दिया। तो इसलिए फिर आज सुबह इनको मुझे थोड़ा कॉन्टैक्ट करना पड़ा कि ड्राइवर की इस पर भेजो। ये सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, उस दिन तो भेजा था ना, फिर से क्यों मांग रहे, और ड्राइवर की इस पे आपने आप करना चाहिए ना। उसको मैंने इनको नहीं बताया। तो देखिए, अभी इतने साल ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने के बाद भी मुझे सबमिसिव रहना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आश्रम में नहीं रह पाऊंगा मैं। तो एक ही शब्द में बोला जाए तो सबमिसिव। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोर हितम, गुरु के हित के लिए कार्य करना है, और उसके लिए इंद्रियों के ऊपर दमन होना चाहिए। दांतो यानी दांत नहीं, दांतो यानी सेंस कंट्रोल। यस, तो वो सेंस कंट्रोल होना चाहिए। तो अभी अच्छा ही है, मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। अभी व्हाट्सएप नहीं है तो उतना जो समय जाता था उसमें वो बच गया। थोड़ा दिक्कत होती है कम्युनिकेशन में, नो प्रॉब्लम, SMS है, ईमेल है इत्यादि। तो सबमिसिव होना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना है और रहना है। तो यस, ये हमारा अविद्या है, ये हमारा मूर्खता है, ये हमारा इग्नोरेंस है, अज्ञान है। जितना अज्ञान होता है उतना हमें अपना अहंकार चढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मंदिर। भगवान के शब्द भी देखिए भगवद्गीता में कैसे एक शब्द बता रहे लेकिन उसके साथ दूसरा शब्द क्यों जोड़ देते हैं। अहंकार के बारे में बता रहे तो विमूढ़ात्मा क्यों बताया कि ये मूर्ख होता है, क्योंकि वो उसका लक्षण है। विद्या बताए तो विनय संपन्न बोल रहे, अहंकार बोल रहे तो विमूढ़ात्मा बोल रहे। तो इस तरह से भगवान हमें सचेत करते हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए। तो अगर वही तो भक्तिवादी लोगों को होता है ना, बाहर के स्कूल कॉलेजेस में सिर्फ ज्ञान अर्जन होता है क्लासरूम में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो अपने गुरु की कुछ सेवा नहीं करते। वो गुरु का घर किधर है वो भी पता नहीं होता। गांव में थोड़ा पता होता है, कॉलेजेस में किसी को भी स्टूडेंट को पूछो आपके टीचर कहाँ रहते हैं, रहते होंगे कहीं तो पूना में रहते होंगे, पूना में कॉलेज है, पूना में रहते होंगे, किसी को पता नहीं होता। और आता टीचर्स को भी पता नहीं होता ये लड़कों का नाम क्या। जैसे कैदियों का नाम लिया जाता है ना, कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2, वैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, सबको नंबर दिए 1, 2, 3, 4। अरे उनके नाम है भाई, उनका कुछ सरनेम भी है। हाँ ऐसे ही होता है। आप स्कूल कॉलेज गए ना, इनको पूछिए क्या इनको कोई उनके नाम से कभी पुकारा गया इनको? कॉलेज में 4 साल रहे वो, बीटेक किया उन्होंने, किसी ने पुकारा आपको रोल कॉल में? कभी नहीं। तो टीचर को पता है कि नहीं हमारा नाम, इसके ऊपर पहला सबसे बड़ा डाउट है। नाम पता होगा तो पुकारेगा ना, आल गोविंद प्रभु, नाम पता है तो पुकारेगा ना, नाम ही पता नहीं तो क्या बोले। तो खाली नंबर दे दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर, और कुछ भी चलता है। वो बोलता है कि रोल नंबर 3 और देखता भी नहीं हुआ, और उधर से कोई और लड़का उसका मित्र ही झूठ बोल देता है यस सर, और इधर पी लग जाता है प्रेजेंट करके। ऐसे बहुत सब बकवास होता है। तो वो जो प्रणाली है उसमें सब अहंकारी रहते हैं।
लेकिन यहाँ हमारा जो गुरुकुल जैसा है, गुरुकुल यानी आर्य ब्रह्मचर्य आश्रम, इधर सभी स्टूडेंट्स को गुरु की सेवा भी करनी होगी। गुरु के लिए बहुत कुछ चीजें करनी होती है, आप पढ़ते होंगे शायद, तो वो सब करना है प्रैक्टिकली। गुरु के रूम क्लीन करना, गुरु के लिए बिस्तर लगाना, बहुत कुछ करना होता है, ये सब करना होता है। और मैंने भी वो ब्रह्मचर्य के रूप में थोड़ा बहुत तो किया है, जैसे हमारे राधेश्याम प्रो के लिए, अन्य सीनियर्स के लिए करते थे। उनका चटाई लगा देना, उनको पूछना कि आप कितना बजे उठने चाहेंगे। तो राधेश्याम प्रो में जब वो NIT वारंगल आते थे, हमारा देर रात तक राधेश्याम प्रो का प्रचार चलता रहता था, 11:30, 10:30, 11। तो मुझे पूछते थे, मैं पूछता था कितने बजे आपको उठना है कल सुबह, मुझे 3:45, तो मैं सो जाता था। और मैं अलार्म कितने बजे का लगाता था, 3:44, 1 मिनट पहले और उठूंगा तो उठूंगा ही, क्योंकि उठाना है उनको भी। तो तुरंत उठता था 3:44 को और उनको उठाता था 3:45 को, 1 मिनट के बाद। तो ऐसे गुरु की सेवा करनी होती है, उनके साथ रहकर। ब्रह्मचारी गुरुकुल वसन दांतो गुरोर हितम, गुरु के हित के लिए कार्य करना होता है। ऐसी पर्सनल सेवा करनी होती है, जो बाहर के स्कूल कॉलेज में कहाँ होती है। उसको नाम भी पता नहीं टीचर का, वो कहाँ से है, टीचर को पता नहीं स्टूडेंट कर रहे हैं। बहुत ही इम्पर्सनलिज्म है, बहुत ही क्या कहते हैं, निर्विशेषवाद है, कुछ भी एक दूसरे के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। तो ऐसी शिक्षण प्रणाली वो तो बकवास है। तो उसमें सब गर्वित हो जाते हैं, गुरु भी गर्वित और उसके सब स्टूडेंट्स भी गर्वित। लेकिन जो गुरुकुल में रगड़ता है अपने आप को, पसीना बहाता है, जैसे एक ब्रह्मचारी था, एक बार वो लकड़ी काटने के लिए गया था जंगल में, सूखी लकड़ी काटी उसने, और वो उसका बंडल बांध के, रस्से से बांध के वो अपने सर पे रख के आ रहा था गुरुकुल की तरफ। तो अचानक उसमें से थोड़ा लूज था एक, तो एक लकड़ी का नीचे गिर गया। तो उसने उठाने के लिए उसको हाथ लगा, तो हाथ से उठाए तो अचानक उसको अपने शरीर, हाथ के ऊपर के बाल दिखाई दिए, जो सभी के सभी सफेद थे, उसमें एक भी काला नहीं था। तो ये देखकर उसको लगा, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया शायद, कितनी उम्र है अभी मेरी, ये भी नहीं सोचा था। तो याद किया तो बोले अभी मेरी 80 साल की उम्र है। तो मैं कब आया था गुरुकुल में, जब मैं 8 साल का था। ओके, 72 साल हो गए मुझे गुरुकुल में ब्रह्मचारी के रूप में रह रहा, 72 ईयर्स, सोचिए। तो उसने सोचा भी नहीं, और सब बाल सफेद हो गए हाथ के, तो सर के तो बाल होंगे, तो ब्रह्मचारी के तो बाल नहीं होते सर के ऊपर लेकिन शिखा जो होगी वो तो पूरी सफेद ही होगी, क्योंकि ये भी सब सफेद हो गए। तो ऐसे होना चाहिए, सेवा 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 सेवा, सेवा ही करते रहना चाहिए, तो फिर बहुत आसान है। तो ये जो अगर हमारे अंदर अहंकार है गुरुकुल में रहते हुए या ब्रह्मचर्य आश्रम में, यानी हमारे अंदर जरूर अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही अहंकार आता है, अहंकार विमूढ़ात्मा। तो इसलिए रगड़ना चाहिए गुरु की सेवा में, पसीना बहाना चाहिए। तो ये ट्रेनर्स का ये होना चाहिए। आपने वो सुनी होगी कि गुरुकुल में 3 लड़के थे धौम्य ऋषि के अंतर्गत, वेद, अरुणी और उपमन्यु। तो ये तीनों की कथा आप कितने जनों ने सुनी है? तो सबने नहीं सुनी है, ठीक है, बाद में बताएंगे। लेकिन संक्षेप में बताया जाए तो कितना उन्होंने किया, वो जो डैम का वाटर पानी आ रहा था, हाँ अभी याद आया सबको, है ना। तो उसने क्या किया फिर पानी को रोकने के लिए, खुद ही सो गए लेट गया और उसको अपने शरीर से उसने रोकने का प्रयास किया पूरा। ऐसे सोने क्या उधर वो, और पानी उसके ऊपर से जा रहा था, वैसे नहीं, वो जागरूक था और पूरा उसको दबा के उसने बंद करने का पूरा प्रयास किया, तो फ्लो बहुत कम हो गया। तो देखिए कितना ऐसे पसीना खून तो नहीं, पसीना तो बहाना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए, तब जाके नम्र बनेंगे। फिर यहाँ जो भी हम विद्या अर्जन कर रहे हैं उसे कभी अहंकार नहीं चढ़ेगा, कृतज्ञता बढ़ेगी। विद्या का एक ये होता है कृतज्ञता, इसी कारण तो गुरु दक्षिणा होती है। जब पूरा ये हो गया, एजुकेशन हो गया, 5 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य आता था आश्रम, और जो भी है 20-25 साल की उम्र में चला जाता था, इतना 15-20 साल रहा, तो फिर अभी उसको इतनी कृतज्ञता होती थी कि गुरु के द्वारा इतना सब कुछ सीखा, न तो थ्योरी, प्रैक्टिकल भी बहुत कुछ सीखा उसने, कुकिंग सीखा, सब कुछ सीख लिया। तो इतना कृतज्ञता होती थी कि कृतज्ञता के कारण ही वो अपने से होके कुछ तो छोटी मोटी कुछ भेंट गुरु दक्षिणा के रूप में देता था। ऐसे कभी फोर्स नहीं किया जाता था कि गुरु दक्षिणा दो वगैरह। आजकल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या है, पहले पैसा दो, फिर पैसा देने के बाद फिर वो अगर पैसा नहीं दिया है तो उसको अंदर स्कूल में जाने भी नहीं देंगे क्या जाने, सवाल नहीं उठता, आपको हका देंगे, सबके सामने अपमानित करके बाहर निकाल देंगे, हट यहाँ से, अंदर कैसे आया तू, पैसा तो दिया नहीं तूने, कहाँ है रिसीट, दिखाओ रिसीट। तो ये एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, ये तो बकवास है, ये तो धंधा हो गया, तो पैसे कमाने के तरीके हो गए। ऐसा नहीं होता, जो टीचर सेल्फलेसली ज्ञान देता है सब कुछ, और बच्चों में वो कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से आती है, क्योंकि उन्होंने अपने टीचर में देखा है वो सब गुण, तो उनको कृतज्ञता आती है, फिर खुद से गुरु दक्षिणा, वो छोटी मोटी उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन वो विद्या का असलियत में परिणाम है, कृतज्ञता वो आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो यानी हमारी विद्या अर्जन में कुछ तो समस्या है।
गुरुकुल में रहते सेवा नहीं कर रहे, इसलिए फिर वो अहंकार चढ़ गया। अहंकार का सवाल ही नहीं उठता। हमने ये श्लोक अभी जो देखा शुरुआत में, फलवंत वृक्ष गुणवंत जन नम्रता से तहा स्वभाव अनुक्षण, हर क्षण नम्रता होनी चाहिए। नम्रता ये विद्या का प्रतीक है। भगवान भी कहते हैं ना अमानित्वम अदम्बित्वम, पहला ही अमानित्वम कहते हैं। क्यों? क्योंकि नम्रता ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। और कोई? अतः समय तो बहुत हो गया। ग्रंथराशि चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्वामी तगौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।